Welcome to We Learn. This is session 1 part 2 of strategic technology planning. So in today's session we are going to discuss about strategic planning. After that we are going to discuss the differences between strategic planning and long range planning. After discussing the difference between them, we are going to discuss the differences between strategies and tactics. After that, the strategic plan's key elements. After that, we are going to discuss the methodologies. After that, mission statements and vision statements. So after that, we are going to discuss the vision, that is bringing things into focus. After that, we are going to discuss the missions, goals and objectives which are used to empower employees. So after that we are going to discuss the strategy, explaining the how, and after that we are going to discuss execution and evaluation, that is ensuring success, and at last we are going to discuss the better strategic planning. So first of all, let us discuss strategic planning. So the term strategic planning refers to a coordinated and systematic process for developing a plan for the overall direction of your endeavor for the purpose of optimizing future potential. So जो strategic planning होती है वो एक coordinated और एक systematic process होती है जो कि हम use करते हैं अपने plans को execute करने के लिए, properly carry out करने के लिए. So for a profit making business, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनी क्वेश्चंस लाइक, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मिशन एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस. जो हमारा बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी मिशन क्या है और पर्पस क्या है. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डू वी वांट टू टेक द बिजनेस. हम बिजनेस को किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. What do we sell currently and what could we sell in the future. Currently हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और in future what services we can provide. Similarly to whom shall we sell it. किसके लिए हम वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो हम किसको सेल करेंगे. After that what do we do that is unique. हमें क्या करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट यूनिक हो जाए. एंड हाउ शैल वी बीट और अवॉइड कंपटीशन, कि हम कंपटीशन को बीट कैसे कर सकते हैं या अवॉइड कैसे कर सकते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच अराइजेस इन दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज इन एम्फेसिस. यहाँ पर जो मेन डिफरेंस होता है वो उनका एम्फेसिस में होता है. लाइक यू कैन सी हियर द फर्स्ट डिफरेंस इज long range planning is generally considered to mean the development of a plan of action to accomplish a goal or set of goals over a period of several years. जो हमारी लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है वो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जो गोल्स हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उनको अचीव करने के लिए हम ये करते हैं. सिमिलरली द मेजर अजम्पशन इन लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज दैट करंट नॉलेज अबाउट फ्यूचर कंडीशंस is sufficiently reliable to enable the development of these plans. यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि हमारी जो करंट इंफॉर्मेशन है, करंट नॉलेज है अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस. हमने जो फ्यूचर कंडीशंस को लेकर जो प्लानिंग की है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो रिलायबल है एंड इट इज सफिशिएंट टू परफॉर्म द ऑपरेशंस. So because the environment is assumed to be predictable, the emphasis is on the articulation of internally focused plans to accomplish agreed on goals. से हमें यहाँ पे एक्चुअली हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो इस तरीके का होगा. हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले से ही एडवांस में ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं. सो हम यहाँ पर प्लान करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन बाय यूजिंग दैट मेथड ओनली. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस. द नेक्स्ट डिफरेंस इज द मेजर अजम्पशन in strategic planning, however, is that an organization must be responsive to a dynamic changing environment. जो हमारी strategic planning है उसका जो फोकस होता है वो इस चीज पर होता है कि जो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे डायनेमिक एनवायरनमेंट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बिहेव करे, रेस्पॉन्स करे, अकॉर्डिंगली चेंज हो सके. सो देयरफॉर द एम्फेसिस इज
in strategic planning is on understanding how the environment is changing and will change, and on developing organizational decisions that are responsive to these changes. कि ये चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या एनवायरनमेंट में कैसे हो रहे हैं और वी एंड हाउ वी कैन रेस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस. सो दीज आर द थिंग्स वी कंसीडर इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन strategies and tactics. So the first one is strategies are different from tactics in that they are proactive and not reactive as tactics are. हमारी जो strategies होती हैं वो proactive होती हैं, whereas जो हमारी tactics हैं वो इतनी proactive नहीं होती, active नहीं होती. The next point is strategies are internal in source and the business venture has absolutely control over their application, whereas tactics are not internal. जो हमारी strategies होती हैं वो internal होती हैं, internal source होता है, whereas जो हमारे tactics हैं वो internal नहीं होते. Similarly, strategy can only be applied once. After that, it is process of application with no unique element remaining, whereas tactics can be applied more than once. जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, वेयरएज जो हमारे टैक्टिक्स हैं उनको हम मैनी टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज द आउटकम ऑफ स्ट्रेटजीज इज नॉर्मली अ स्ट्रेटेजिक प्लान विच इज यूज्ड एज अ गाइडेंस टू डिफाइन फंक्शनल एंड डिविजनल प्लान्स. जो हमारा आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है स्ट्रेटजीज का, वो एक तरीके से ट्रीट करता है, हमारा जो गाइडेंस प्रोवाइड कराता है हमारे फंक्शनल और डिविजनल प्लान्स के लिए, including technology, marketing, whereas outcome of tactics is not a strategic plan. Whereas यहाँ पे क्या होता है, जो tactics हैं हमारी उनका strategic plan outcome नहीं होता, उनका जो output है वो strategic plan नहीं होता है. Now comes the strategic plans key elements. हमारा जो strategic plan है उसमें कौन कौन से key elements होते हैं, we are going to discuss those aspects here. So a company's strategic plan is the game plan that management uses for positioning the company in its chosen market arena. जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है कंपनी का वो एक गेम प्लान होता है जिसके हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि हम अपनी कंपनी को मार्केट में या मार्केट एरिना में कैसे प्लेस करें. सो कंपीटिंग सक्सेसफुली, हाउ वी कैन compete सक्सेसफुली, एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, दैट मीन्स हाउ वी कैन सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड अचीविंग गुड बिजनेस परफॉर्मेंस. So most business owners and executives have countless excuses for not having a formal strategic plan. जो business owners होते हैं, जो executives होते हैं, उनके पास different you can say excuse होते हैं कि हमारे पास एक strategic plan क्यों नहीं हो पाया properly execute. So it's often said we are too new to, we are not big enough to, so we have never had one and at last why start now. मतलब हमारे पास ये जो हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है. सिमिलरली दूसरा एक्सक्यूज क्या हो सकता है, दैट वी आर नॉट बिग इनफ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. सिमिलरली द थर्ड एक्सक्यूज कैन बी वी हैव नेवर हैड वन, दैट मीन्स हमने इस सिचुएशन को पहले कभी फेस नहीं किया है. एंड एट लास्ट व्हाई स्टार्ट नाउ, अभी हम इसे क्यों स्टार्ट करें. Now the strategic plan's key elements, that is studies indicates that roughly 90% of all businesses lack a strategic plan. जो भी 90% businesses होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, हम strategic plan को लैक करते हैं, हम इंक्लूड नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते. So of those that have a plan only 10% actually implement it. कुछ organizations इसे को फॉलो भी करती हैं, but out of these organizations only 10% actually implement it. So basically here are the questions which you can ask yourself related to the strategic plan. So the first question is, can your company be more focused? क्या आपकी कंपनी और ज़्यादा फोकस कर सकती थी? So can you be more effective? क्या आप और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हो? Can your employees be more efficient? And at last, can your company be more successful? Now comes the methodologies. So here there are many approaches to strategic planning, but typically a 3-step process may be used. यहाँ पर different ways होते हैं strategic planning के लिए, लेकिन हम 3-step process को use करते हैं. As you can see here, the first one is situation. So it evaluates the current situation and how it came about. ये show करता है कि कोई current situation कैसे exist की ही
अराइज हुई है। द नेक्स्ट वन इज टारगेट, इट डिफाइंस द गोल्स और ऑब्जेक्टिव, जो टारगेट होता है वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट कम्स द पाथ, दैट इज इट एक्ट्स एज अ मैप, अ पॉसिबल रूट टू द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये एक मैप की तरीके से वर्क करता है, एक रोड की तरीके से वर्क करता है, which takes us to our objectives. Now comes the other points, the other ways, that is draw, see and think. So under draw, what is the ideal image or the desired end state? Draw के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी आइडियल पॉइंट होगा, जो गोल पॉइंट होगा वो कैसा होगा। आफ्टर दैट सी, दैट इज व्हाट इज टुडेज सिचुएशन, व्हाट इज द गैप फ्रॉम आइडियल एंड व्हाई, अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है और हमारी जो आइडियल सिचुएशन थी वो क्या होनी चाहिए थी और इससे गैप क्यों है, ये हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट कम्स द थिंक, दैट इज व्हाट स्पेसिफिक एक्शंस मस्ट बी टेकन टू क्लोज द गैप बिटवीन टुडेज सिचुएशन एंड द आइडियल स्टेट। थिंक में हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे कौन कौन से करंट ऑपरेशंस हो सकते हैं और हम उनको, जो हमारे टास्क हमने परफॉर्म किए हैं या जो एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, इन दोनों के बीच में हम गैप कैसे रिड्यूस करें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज यू कैन सी थिंक एंड ड्रॉ। सो इन सी पार्ट व्हाट इज टुडेज सिचुएशन, सी में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। इन थिंक वी डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इन ड्रॉ अगेन वी मैप ए रूट टू अचीव द गोल्स। Now comes the next, that is in other terms strategic planning can be as follows। जो हमारी strategic planning है वो हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, like we have first one, that is vision। So it defines the vision and set a mission statement with hierarchy of goals। विजन में हम क्या करते हैं, एक मिशन स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, एक गोल्स डिफाइन करते हैं, उन गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम्स द SWOT, दैट ये SWOT जो होता है ये बेसिकली एनालिसिस टेक्निक है विच इज कंडक्टेड टू चेक द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कम्स द फॉर्मुलेट, सो फॉर्मुलेट एक्शंस एंड प्रोसेसेस टू बी टेकन टू अटेन दीज गोल्स। यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं उन एक्शंस का, उन प्रोसेसेस का जिनकी हेल्प से हम गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द इम्प्लीमेंट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसेसेस, जो हमने प्रोसेसेस क्रिएट की हैं अब उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। After that comes the control, that is monitor and get feedback from implemented processes to fully control the operation. Now comes the next topic, that is mission statements and vision statements. So basically a mission statement tells you the fundamental purpose of the organization। जो mission statement होती है वो किसी भी organization का जो main objective है उसको show करती है। So it concentrates on the present, ये current टाइम पर या प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करती है। सो इट डिफाइंस द कस्टमर एंड द क्रिटिकल प्रोसेसेस, इसकी हेल्प से हम कस्टमर्स को डिफाइन करते हैं और जो हमारी क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं उनको शो करते हैं। इट इन्फॉर्म्स यू ऑफ द डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ कम्स द विजन स्टेटमेंट। सो अ विजन स्टेटमेंट आउटलाइंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, इट कंसंट्रेट्स ऑन द फ्यूचर, इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इट प्रोवाइड्स क्लियर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। सो जो विजन स्टेटमेंट्स होती हैं वो फ्यूचर पर फोकस करती हैं, ये शो करती हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है, किस लेवल पर पहुंचना चाहती है। एंड इट प्रोवाइड्स क्लियर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, यहाँ पर क्लियर डिसीजन मेकिंग जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम्स द विजन, द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विजन bringing things into focus। So you get what you focus on, everyone knows this, so that is, but most companies are busy tending to the urgent problems of the day and not focusing on key long term issues। आज के टाइम पर जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम आती है, फेस करते हैं, वो ये होती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉर्मल जनरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फोकस नहीं करती हैं लॉन्ग टर्म इश्यूज पर। सो अनलेस योर स्टाफ कैन फोकस ऑन अ कॉमन विजन, द कंपनी कैन गो नोवेयर। जब तक जो हमारा स्टाफ है वो एक कॉमन गोल को पर फोकस नहीं करेगा तब तक हमारा कोई भी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। सो द फोकस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी एट अ कॉमन
goal. Now comes the missions, goals and objectives, that is empowering employees. So the mission statements, goals and objectives are the roadmap in a strategic plan to empower your employees to be more effective. जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एक तरीके से रोड मैप का वर्क करते हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एम्पावर करते हैं. दैट मीन्स दे इंक्रीज देयर पावर. सो डोंट लेट दीज एलिमेंट्स बी जस्ट अ पैराग्राफ ऑन द ब्रेक रूम वॉल और बुलेट पॉइंट्स इन अ मेमो. ये जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं इन्हें सिर्फ एक रूम पर हमें पेंटिंग की तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें अपनी रियल लाइफ में भी यूज करना चाहिए इन प्रिंसिपल्स को. सो लेट देम शाइन एज प्राइमरी गाइडलाइंस for leading the organization to higher levels of performance. They provide the framework for independent decisions and actions initiated by departments, managers and employees into a coordinated company-wide game plan. यहाँ पर जो हमारे employees होते हैं उनको हमें freedom देनी चाहिए so that they can take their actions and perform their duty well. Now comes the next topic, that is strategy and explaining the how. So after the mission, goals and objectives are clear, establish how you are going to achieve those items. अभी हमने सपोज क्लियर अंडरस्टैंडिंग की कि हमें गोल्स कौन से अचीव करने हैं, मिशन हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. आफ्टर दैट, आफ्टर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विच शोज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोज आइटम्स. हम अब इन आइटम्स को, इन पॉइंट्स को कैसे अचीव करेंगे. सो अ स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द व्हीकल एंड आंसर्स द क्वेश्चन. How are we going to get there with the resources we have? So यहाँ पर स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम क्या डिफाइन करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज विच वी हैव. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज अ गुड स्ट्रेटेजी फोकसेज ऑन एफिशिएंसी थ्रू. जो हमारी गुड स्ट्रेटेजी होती है कुछ वो फोकस करती है एफिशिएंसी पर थ्रू सम पॉइंट्स लाइक अचीविंग परफॉर्मेंस टारगेट्स. जो हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करके. सेकंड, आउट परफॉर्मिंग योर कंपटीशन. जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़कर भी हम अचीव कर सकते हैं. सिमिलरली अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एंड एट लास्ट ग्रोइंग योर रेवेन्यू एंड मेंटेनिंग और श्रिंकिंग योर एक्सपेंसेस. हमारे जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करके और जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर. आफ्टर दैट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स. हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं. रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस. दैट मीन्स जो हमारे मार्केट कंडीशंस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके या अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हम अडेप्ट करके भी अपलिफ्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लेवल को. Now basically strategies keep your whole company acting together while strengthening the company's long-term competitive position in the marketplace. Now comes the next topic, that is execution and evaluation. So ensuring success. Basically our strategic plan is a living dynamic document. It drives your business and must be integrated into every fiber of your organization. जो हमारा strategic plan होता है वो डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है, तो हमें इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पार्ट में इंप्लीमेंट करना चाहिए. सो एवरी एम्प्लॉय इज हेल्पिंग टू मूव द कंपनी इन द सेम डायरेक्शन. इससे क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो एक चीज पर फोकस करेंगे और इसके हेल्प से वो सेम डायरेक्शन में अपने एफर्ट अप्लाई कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट मिशंस एंड स्ट्रेटजीज इन द वर्ल्ड आर अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ दे aren't implemented. Now comes the better strategic planning. So there are different ways to get the most out of the strategic planning process. So here are the ways by which we get best out of our strategic planning. Strategic planning से हम best कैसे achieve कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ways हैं. So first of all, the first point is pull together a diverse yet appropriate group of people to make up your planning team. यहाँ पर क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी लीड्स टू ए बेटर स्ट्रेटेजी. जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती है दैट मीन्स डिफरेंट पर्सन्स होते हैं विच हैव अ डिफरेंट एबिलिटी. तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेटेजी बेटर होगी. सो ब्रिंग टुगेदर अ स्मॉल कोर टीम बिटवीन 6 and 10 पीपल ऑफ लीडर्स एंड मैनेजर्स हु रिप्रेजेंट एवरी एरिया ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स यहाँ पर हम एक टीम
क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं 6 to 10 पीपल्स का, जो कि हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पर कुछ मैनेजर्स होंगे, लीडर्स होंगे, एंड दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज अलाउ टाइम फॉर बिग पिक्चर strategic thinking. So we tend to try to squeeze strategic planning discussions in between putting out fires and going in a much needed vacation. But to create a strategic plan, your team needs to think big, do whatever it takes to allow that time for big picture thinking. That means हमें किसी भी thinking process के लिए थोड़ा time देना चाहिए, because it is going to take some time to give some response. किसी भी response के लिए थोड़ा किसी भी process को हमें time देना चाहिए, so that it can have its effects in a better way. Now the next point is get full commitment from key people in your organization. जो important peoples हैं हमारी किसी भी organization में, उनसे हमें fully commitment लेना चाहिए, effort put कराने चाहिए, so that our plans get success in a proper manner. Now comes the next point, that is allow for open and free discussion regardless of each person's position within the organization. Here don't lead the planning sessions, hire an outside facilitator, someone who doesn't have any stake in your success. When you do, people wonder whether you are trying to lead them down the path you wanted all along. Encourage active participation, but don't let any one person dominate the session. इसका मतलब है कि हमारा कोई भी जो सेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसमें डिफरेंट पीपल्स को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और सभी को बोलने का मौका देना चाहिए. एंड वी शुड इनकरेज एवरी पर्सन टू स्पीक समथिंग, बिकॉज any person can give some new idea which may be useful for the organization. Now the next point here is think about execution before you start. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. And the next point is use a facilitator if your budget allows. So hire a trained professional who has no emotional investment in the outcome of the plan, and an impartial third party can concentrate on the process instead of the end result, and can ask the tough questions that others may fear to ask. यहाँ पर क्या है, एक हमें थर्ड पर्सन, एक फैसिलिटेटर हायर करना चाहिए which don't have any role in the outcome of the plan, जिसको किसी भी प्लान के आउटकम के बारे में या आउटपुट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि उसको उस चीज की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ही कैन give you a clear idea of what the actual situation is inside the company. Now the next point is make your plan actionable. जो हमारे प्लान्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उन पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें. जो हमारे प्लान्स हैं वो इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए, और जो हमारे प्लान्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर ही अचीव करें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए. Now comes the next point, that is don't write your plan in stone. So a good strategic plans are fluid, not rigid and unbending. They allow you to adapt to changes in the marketplace. Don't be afraid to change your plan as necessary. Plans हमारे ऐसे होने चाहिए कि हम नीड के अकॉर्डिंग, अपने चेंजिंग मार्केट के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकें, अडेप्ट कर सकें, and so these should not be rigid. Next comes the clearly articulate next steps after every session. So before closing the strategic planning session, clearly explain what comes next and who are responsible for that. किसी भी एक प्लानिंग को कंप्लीट करने से पहले हमें ये प्लान करना चाहिए कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा. So when you walk out of the room, everyone must fully understand what they are responsible for and when to meet deadlines. इसीलिए जब भी कभी कोई मीटिंग ओवर होती है तो वहां पर सभी एम्प्लॉइज को ये पता होना चाहिए कि उनका अब नेक्स्ट टास्क क्या है, उनको क्या काम परफॉर्म करना है और किस टाइम तक कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज मेक स्ट्रेटेजी अ हैबिट, नॉट जस्ट अ रिट्रीट. सो रिव्यू द स्ट्रेटेजी प्लान फॉर परफॉर्मेंस अचीवमेंट नो लेस देन क्वार्टरली एंड एज ऑफन एज मंथली और वीकली. यहाँ पर परफॉर्मेंस को हम अचीव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. आफ्टर दैट ये जो चेकिंग हो सकती है वो क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है और वीकली हो सकती है. सो फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स एंड हैव क्लियर एंड कंपेलिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अनअप्रूव्ड मिस्ड डेडलाइंस.
Now at the end of this session there is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what is a strategic plan? And now the next question is, difference between strategic planning and long range planning. So this is the end of this session. Thank you.